Assalamu alaikum dear student, I am Saqib Abbasi, your math teacher. My YouTube channel name is Math Sarkar. Today we have a topic logarithm and exponential functions. What is a logarithm? What is the logarithmic functions? We have to discuss in detail. There is two types. We say that first one is index, second one is log form. What is the index form? What is the log form? I just write it these equations to identify the index form. Here y equal to a power x. This is we say that index form, and other one is we say that it is a logarithmic form. X equal to log of a and y. So first of all we have to discuss what is this. This is power, and what is this? This is we are calling base, and this is base. And what is y? The y is we say dash argument, argument. This is argument. Now we have to convert index number into the logarithmic form, log form. So what is the logarithmic form? First of all, your this is your power. Power will be here, and your base is there, and argument is here. We have tried to write into logarithmic form. Now moving forward, there is we have a question. Log of 216 equal to 14. How we solve this question, how we use the rules. Okay, number one, i have to I have to write it into 2 power 4 equal to 16, because this power will be here. Because this is logarithmic form, I have to convert it into the index form. So 2 power 4, it's 16, and 16 this left hand side equal to right hand side. Now we will going to second question. Second question is quite similar. So this is your base, and this is your power. Okay, and there is your argument. So 49 equal to 49, we have this question. And also our third part is similar. 3 power 4, this is your base, and 4 is your power, and 81 is your argument. 81 equal to 81. Yes, we have to complete. I think you have to understand this concept. Now moving to forward. uh, 2 power 5 equal to 32. Okay, we have to convert it into the log form. How we convert 2 power 5 equal to 32? So for this one we have to convert it into this form, logarithmic form. Okay, now first of all you have to understand, identify the what is your power, what is your base. Look here, this one is your base. So we have to write base is log of 2. Okay, this is your base. And what is your power? Power is 5. And what is your argument? This 32 is your argument. You can write it into this form. Okay, understand? Now we have a next question. Next question is we have 2 power minus 5 equal to 1 by 32. Okay, first of all, which one is your base? So this is your base, 2 is your base, and minus 5 is this green portion. Minus 5 is your power exponent, and 1 by 32 is your argument. Okay, how to write it? Log of 2. Okay, 1 by 32 argument, and here is power minus 5. So we have to convert into the logarithmic form. Okay, these one are your practice question. You can solve by yourself, and you can take its screenshot. Okay, now we will moving forward.
Here the question is about, we have to solve this question. How we solve this question is very simple. We have to using the rules. 7, this is your base, power is 2, equal to 49. 49 equal to 49, this is, we have to prove that. Okay dear friends, we have a next question is 3. Here 3 power 4 equal to 81. This is 81 equal to 81. We have the answer of this question. Now moving toward our third question is very simple. Again we have to use the concept 2 power 4 equal to x, because your base is 2 and power is 4, so x equal to 16 our answer. Now it's b part, question number 3. So here 3 power 2 3 power 2 equal to x, and x equal to 9, we have this answer. Okay, now for d part, 3 power 1 by 2 equal to x. Okay, now how we write it? We can write it into 3 square root. This is our form. Our f part here, x power 3 equal to 27. If x power 3, here we can write it 27. 3 power 3, it will be 27. So x equal to 3 our answer, because these three are cancelled with each other. So our answer is x equal to 3. Okay dear friends, now we have to discuss about the rules. What's the rules of the logarithmic? Okay, we have to discuss about one rule before we have solving these some questions. Okay, now our new rules is that if the base and argument are the same. What is the base? So I write it here, log, this is x, this is x, it will be 1. Okay, now second one is, we have log, if base is, we have x and argument is over 1, so answer will be 0. Now rule number, next rule we have, if if we have a base is x and argument has a power u, so the power will be get at start u log x into a. Okay, the only discussion about the power will be at the start. Okay, further we have discussed about, if similarly, if you have a 3 the answer will be 1. If you have a, next one is, if you have a 4 and 4, the answer will be 1, because the base is same. This one is base and argument is same, so your or answer will be 1. Next one, anything, if we have, here base is 6 and our argument is 1, the answer will be 0. If the base is 10, argument is if we have a 7, argument is 1, there will be 0. Okay, now these rules we have to use further most commonly. Next one is log. Now we have to start about the log with base 10 is called lg. What is the mean? It is a very important property. When we have written form is lg, it's always mean log base is 10, log 10, they are the same thing. Okay, first one is, we have, if we have a write into log 10 into 6, it's mean lg
6. You don't write it about here 10 because lg means simple lg means your base is 10. Okay, similarly, you can also write it log 10 9. You can write it lg9. Okay, number 6 is another very important property. This property is log with base e is ln. Okay, this property is very commonly used in the logarithmic questions. Our first one is, it's mean if you have a log property is base is 10, so it's mean you write it ln. Okay, we have another little information about if you have a log e power equal to ec, so you can write it lnc. Okay, now we have to use laws of the logarithm. These are the very important rules. Here we have to solving the logarithmic questions. We have a first property is multiplication property. What is a multiplication property? You have a log, it's a base, and these two arguments are multiplied, so your answer is log of ax. It will be multiplied, so it will be add. This is the property of log. When you multiply it, it will be plus. Another second rules, log of a x and y, it's mean log of x, log of a x minus log of a y, because these two are divide, so here property say that it will be negative. Important things. Okay, now our power rule, how we deal power rules. I have to zoom it. Log a x bar m, here m log of a into x. Just think is about this power will be at start. Okay, this is the logs property, very important to solving for questions of the logarithm. We have a question is just log of 8 and log of 8. How we solve this question, because we have to discuss about if the log property, if these two are multiplied or add, we can write it into the single log. This is positive, so property said that 8 multiplied by 8. Okay, so here 8 8 it will be 64, or answer. Okay, next one, again look that these two bases are same. How we solve this question? Again, log of 4. The property said that if they are added, so they will be multiplied. F15 multiplied by 5, here log of 4, and you got this answer 15 multiplied by 5. Okay, now C part, how we solve the C part. Okay, 2 log of 3 4 plus 5 log of 3 into 2. How we solve this question? Here log of 3 4, because at start, here the property say that when we convert it into the single log, this will be at power. Okay, the power is 2, because if this number is multiplied by the log, so we will convert it into the single log. Okay, now here 5 is multiplied by log, and this power will be shift here, log of 3 to power 5. Okay, next step is we have to convert it into the single log. 4 power 2 plus mean it will be multiply 2 power 5. Okay, log of 3, 4 power 2 it will be 16, and 2 power 5 it will be 32.
So log of 3, 16 multiplied by 32, it will be 512. This one is our required answer. Now we have to solving more questions. Okay, dear friends, we have a question. Question is that 3 power x equal to 40. So this is the exponential equation. How we deal these exponential equations? Remember that if you have any constant and power will be a variable. Okay, this is the constant and this is the variable. So you take log both side. If you have this type of problem, come here. So you should take log both side. What's the log we have? Take log 3 power x log 40. Again I have to write the property say that if you have in mathematics, if you have a constant and its power is variable, you take log both side. Now apply the log property. What is the log property? This power will be at start. Okay, x log of 3 log of 4. Here at here this log is multiply with x, so in other side it will be divide. Here x will be, we get the answer is 3.36. This is our answer. You put this value log of 4 divided by log of 3 in calculator, we get the answer. Okay, now similarly next question, this is the similar same case. You have a constant and constant variable power is variable. Okay, this is variable, constant power variable. You take log both side, log 5 2x plus 1 log 200. Okay, here power will be at start 2x plus 1 log of 5, here log of 200. Okay, now how to deal this one? Log 2x plus 1 in other side log 200 divided by log 5. Why? Because this log is multiply by 2x plus 1 and other side it will be divide. Now 2x plus 1, I have to zoom it. 2x plus 1 log 200 divided by log 5. We put this value in the calculator. We got the answer is 3.292. We got this answer. Okay, now other side 2x equal to 3.292 minus 1. This is positive, other side it will be negative. Okay, here 2x 3 minus 2 9. The answer, if we take it minus 1, 2.292. This 2 is multiplied with x and other side it will be divide. 2.92 divided by 2, we got the answer is 1.19. This is our answer. Okay, now we will go to the next part. And this is, we have a question, exponentials powers. Exponential have a powers. So how we solve this type of the question? It's very simple, similar, very simple. Now remember, you have a, this power is, you have a x, this is your e. Okay, and power is also variable. Here an exponential, if you have a exponential, its power is variable. You take natural log both side, take natural log both side. The rule I have write it, exponential power with 6 7 anything, you take natural log both side. Okay, you have to understand the concept. Okay, now here x is power and power will be at the start, because logarithmic property is that power will be at start, it will be multiplied by the log. X log of e log of 7. Remember that in log of e is always 1, it will be 1. X
1 log of 7 x equal to log of 7. Put this value in calculator, we got 1.95. This is our answer. Okay, now we have our next question. Next question is e power 1 minus x. How we solve this one? We take natural log both side to 1 minus x. Just change the color. Okay, take natural log 1 minus x, natural log 5. Property is that power will be at start log of 5. Okay, so we know that 1 minus x we have previously discussed about here. uh, Log e power will be 1. The answer will be 1 log of 5. Okay, minus x log of 5 minus 1. Okay, so we got the answer. When we calculate all these problem, we get x equal to 0.609 this. So this minus will be shift here, x equal to minus 0.609. We got this answer. Hopefully you can understand this concept. Okay, next question is, dear students, is from book question, page number 115. The question number 7, solving giving your answer correct to the three significant figure. Log of x equal to 3. What's the answer of by using here? Look here, this one. Here is e, because at exponential function the base is e. To log this base is e power 3 equal to x, because the property said that's base at power. This will be power. We have to apply the our first property, x equal to e power 3. What's the answer of e power 3 if we use the calculator and using three significant figure? So we get the answer is e power 3 is 20.1. Okay, now second one is log of x equal to minus 2. How we solve this one? Here we have a x, this one is e, so this power will be e power minus 2 equal to x equal to e power minus 2. By using calculator, we got the answer is 0.135. 0.135, we got this one. Now our d part is similar these first two parts. Here is e power 3 equal to 2x minus 5. Okay, now e power 3 plus 5 equal to 2x, and 2 will be divided in other side. Here I had to zoom it. It will be x, and x we got the answer. If we using the calculator, we got the answer is e power 3 plus 5. Now our answer is 12.5. These are our answers. Okay, we have to complete the question number 7 from the books. Now we will going forward. We have a past paper question. The question is it's 4 marks question. Log it's mean lg, it's mean log base 10. Lg log base 10, lg log base 10. How we solve this question? By using apply. First we have to apply 7x. Similarly 7x minus 3 plus log 2 will be at start, because by log property power will be at start, because I have to convert it into the single log. If we convert the single log, we will use all these properties. Okay, now 2 plus log x plus 3. Okay, now this log is, just zoom it, this question. Okay, I think this is perfect. Okay, log 7x minus 3 minus log of x plus 3 plus log of 25 equal to 2. Okay,
Now we have to convert it into the single log, because first these two are positive and mid one is negative. So the positive number will be multiplied. Log of 7x minus 3 here, and here it's 25, because these two number are multiplied. The- and and this number is, because it is negative number, so it will be divide x plus 3. Okay, this is my division numbers. Okay, okay, equal to 2. Now we have going forward, 7x minus 3, 25 divided by x plus 3 and 2. Could we write it into this one? Because log into 10, we know that log 10 base 10 equal to 1. There is 1, so we can write it into this form. Okay, I think you have to understand this explanation for these questions. Okay, now move forward. This log and log or cancels with each other. We have remaining, the answer is 7x minus 3, 25 divided by x plus 3, and here is 2 log 10 and 10. By using the property is that this power will be, okay, these friends, this log are cancel with each other, so we get 25, 7x minus 3 divided by x plus 3 equal to 100. Okay, because these logs are cancelled, because they are the same, they will be cancelled with each other. Okay, now this will be multiplied by another side, 25, 7x minus 3, 100, x plus 3. Now I have to zoom it. This one is 25, ones are 25, 25 fours are 100. Okay, we will cancel this one, 7x minus 3 and 4x plus 12. So we got the answer is 7x minus 4x, 12 plus 3, 7x it will be 3x, 12 plus 3 it will be 15, and we got the answer is x equal to 5. Okay, dear friends, now moving to our next part, how we solve this question. These are the also similar question, how we solve this question. Now for this question we have make a single log. When we make the single log, look, this one there is at, it will be multiplied by y by using logarithmic property. Okay, because this is adding process, so we get multiply. Okay, now log, similarly case, 2x plus 10 y equal to 2. This is 1. Okay, if this is 1, there is no number, so it will be 1 multiplied by 1, the answer will be 2. So could we write it, 1 is, we have to write it log of 10, because we know that log 10 into 10, answer will be 1. Okay, so we can write it into this form. Now using next logarithmic property say that this power will be at start, and here log and log will cancel with each other, so 2x plus 10 into y equal to 100. Okay, okay, this term is y, this term is y, this term is y, and this term is y. So we
multiply by each other, 2y square, 2y square, 10y, and 100 it will be other side, it will be minus 100. So 2y square, 10y minus 100. One thing is common, one side, y square plus 5y minus 50 equal to 0, y square plus 5y minus 50 equal to 0. Here y square plus 10y minus 5y, we have to using midterm breaking technique. Y is common, y plus 10 minus 5 is common, y plus 10 equal to 0. So we got y plus 10 common, y minus 5 equal to 0. So y equal to minus 10 and y equal to 5. We got these two answers. Okay फ्रेंड्स, हम करेंगे एक्सपोनेंशियल कर्व्स या एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स, हम इसको एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स भी कहेंगे. ओके डियर स्टूडेंट, हमने हाउ टू स्केच एक्सपोनेंशियल कर्व्स, हाउ टू स्केच एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स. ओके, सबसे पहले डियर स्टूडेंट हमारे पास एक क्वेश्चन है, एग्जांपल के तौर पर बुक से हमने उठाया हुआ है क्वेश्चन y इक्वल टू 2e पावर x माइनस 4. तो इसका ग्राफ फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसको x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, जिसको y इंटरसेप्ट कहते हैं, और y की वैल्यू हमारे पास 2e पावर 0 माइनस 4, और हमें पता है कि टू ई पावर 0 वो 1 हो जाता है, माइनस 4, तो इसका मतलब ये हुआ 2 माइनस 4, हमारे पास ये आंसर आया है माइनस 2. सिमिलरली पैटर्न पे हम करेंगे y इक्वल टू 0. तो y इक्वल टू 0 पुट करेंगे हम इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में हम y इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में हम y इक्वल टू 0 पुट कर लें, 0 2 ई पावर एक्स माइनस 4. आप देखें माइनस 4 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. तो हम इसको मज़ीद कैसे लिखेंगे, 2 ई पावर एक्स इक्वल टू 4, माइनस 4 दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो गया, ई पावर एक्स 4 डिवाइडेड बाई 2, तो जो हमारे पास आंसर आया ई पावर 2, ई पावर एक्स इक्वल टू 2. अब हम डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ई को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, ई को रिमूव करने के लिए हम दोनों साइडों का नेचुरल लॉग ले लेते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ ई पावर एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ 2, और मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें, एक्स पावर शुरू में आ जाएगी, लॉग की प्रॉपर्टी और लॉग ऑफ 2, और हमें पता है लॉग ऑफ ई किसके इक्वल है, वो होता है 1 के लॉग ऑफ 2. अगर हम कैलकुलेटर के साथ इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो आई थिंक इसका आंसर चलें लॉग ऑफ 2, आप लॉग ऑफ 2 ही रहने दें. ओके, नेक्स्ट वन है हमारे पास. अब बार आती है, क्योंकि जब भी हम एक्सपोनेंशियल ग्राफ को पढ़ते हैं तो एसिम्टोट का वर्ड यूज़ होता है, एसिम्टोटिक इक्वेशंस, एसिम्टोट के कंसेप्ट को हम रिफाइन करते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर हम करेंगे x टेंड्स टू इन्फिनिटी. ओके, x इन्फिनिटी है, y इक्वल टू 2 ई पावर इन्फिनिटी माइनस 4, y 2 ई पावर इन्फिनिटी क्या हो गया, इन्फिनिटी माइनस 4, y क्या हो गया माइनस 4. तो 2 पावर इन्फिनिटी, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, 2 इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस 4, इन्फिनिटी में से कोई भी चीज़ वैल्यू माइनस करें या पॉजिटिव करें तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी. तो x इन्फिनिटी y इन्फिनिटी. सिमिलरली बेटा नेक्स्ट पैटर्न में हम करेंगे x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, तो y 2 ई पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस 4. तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ क्या हो गया, 2 ई पावर माइनस इन्फिनिटी, आंसर क्या हो गया 0. तो ये क्या हो गया माइनस 4, तो y की वैल्यू क्या होगी 0 माइनस 4, और y क्या हो गया माइनस 4. ओके डियर स्टूडेंट, आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर हमने क्या करना है. और मैं एक रिज़ल्ट ये साइड पर लिख लेता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड रहे. ई पावर इन्फिनिटी वो डियर स्टूडेंट्स इन्फिनिटी के ही इक्वल होता है, और ई पावर माइनस इन्फिनिटी वो किसके इक्वल होता है, वो 0 के इक्वल होता है. इस स्टेप को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें. अच्छा, अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स के इसका ग्राफ ड्रा करेंगे. अब ग्राफ ड्रा करने से पहले सारी वैल्यू को देख लें. अगर x 0 है तो y की वैल्यू माइनस 2 है, y 0 है तो x की वैल्यू लॉग ऑफ 2 आ रही है आपके पास, ठीक है.
और ये हमारे पास है एक्सप्लेनेशन। ओके ओके, और x इन्फिनिटी है तो y भी इन्फिनिटी है, x नेगेटिव इन्फिनिटी है तो y क्या -4 है। तो ये हमारे पास एसिम्प्टोट बन रहा है -4 पे। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे, कैसे ये चीज़ें हमारे पास ड्रॉ हो रही हैं देखें, ये हमारे पास, और दूसरी लाइन हम ये ड्रॉ कर देते हैं। ये डियर स्टूडेंट हमारे पास लाइंस ड्रॉ हुई। अच्छा, सबसे पहले हम ग्राफ के अंदर अपनी वैल्यूज ड्रॉ करते रहेंगे। सबसे पहले हमारे पास x 0 है और y -2 है, x 0 है और y -2 है। तो आप x 0 -2 यहाँ पर लगा लें, x 0 -2 ये वैल्यू ड्रॉ होगी। अच्छा, सेकेंडली आपके पास क्या है, y की वैल्यू अगर आपके पास 0 है तो x की वैल्यू log ऑफ 2 है, तो log ऑफ 2 आपके पास यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। तो और इसके बाद आपके पास क्या है, एक्स माइनस इन्फिनिटी और वाई -4 है, तो -4 पे हमारे पास ये वैल्यू है। तो मीन्स हमारे पास एसिम्प्टोट जो बन रहा है -4 पे बन रहा है। ये स्टूडेंट्स कैसे बन रहा है, आपका एग्जाम में क्वेश्चन बैठ रहा होगा कि सर ये कैसे एसिम्प्टोट बन रहा है। देखें, y की वैल्यू क्या माइनस इन्फिनिटी और x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी और y की वैल्यू -4 है, कि मीन्स ये इस लाइन पे कभी क्रॉस नहीं करेगा, इंटरसेक्ट करता रहेगा। मीन्स ये देखें आपके पास, ये हमारे पास ग्राफ यूँ बना, यूँ गया, और ये इसको टच नहीं करेगा, ये इसको इसके साथ चलता रहेगा इन्फिनिटी टाइप तक। देखें, x इन्फिनिटी है, लेफ्ट साइड पे आपके पास x की वैल्यू सारी नेगेटिव है, x इन्फिनिटी है, ओके। और y की वैल्यू जो है आपके पास -4 को क्रॉस नहीं कर रही, इसको साथ इसके साथ चल रही है, ठीक है। अब सेकेंडली डियर स्टूडेंट, आप सोचोगे ये वाला हमने क्यों चूज़ किया। देखें, x इन्फिनिटी y इन्फिनिटी, x टर्म भी यहाँ पर इन्फिनिटी है और y टर्म भी इन्फिनिटी है। x इन्फिनिटी y इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है और चलते चलते ये कहाँ तक जा रहा है, x माइनस इन्फिनिटी की तरफ, क्योंकि लेफ्ट साइड पे सारी नेगेटिव इन्फिनिटी है और ये -4 को क्रॉस नहीं कर रहा, इसके साथ साथ पैरेलल आंसर दे रहा है। तो ये एसिम्प्टोटिक इक्वेशन बन गई है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की एसिम्प्टोटिक इक्वेशन बनती है। डियर स्टूडेंट, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आते हैं हम इसका सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन, हम इसको बी क्वेश्चन का नाम दे देते हैं, वो है y 2e⁻⁻x+6। ओके, x अगेन हम सबसे पहला क्या काम करेंगे, x टेंड्स टू 0 पुट करेंगे, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2e⁻⁻0+6, और इसको सिंप्लीफाई किया 8, तो y का आंसर हमारे पास क्या हो गया, 8। सिमिलरली पैटर्न है बेटा, y = 0, तो 0 2e⁻⁻x+6, और यहाँ पर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, -6 2e⁻⁻x, और ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -3e⁻⁻x। तो डियर स्टूडेंट, ई पर नेगेटिव -x, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, e⁻⁻x = +3, अगर हम माइनस को शिफ्ट कर दें तो माइनस इन्फिनिटी इसके साथ शिफ्ट कर दें, तो हमारे पास इसका मतलब नो सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो एक्सपोनेंशियल का हमारे पास, अब आते हैं हम x टेंड्स टू इन्फिनिटी को पुट करते हैं। x हमने इन्फिनिटी को पुट किया, तो y 2e⁻⁻�6, ओके। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0+6। बेटा यहाँ अगर आप देखें, माइनस इन्फिनिटी हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ये डिस्कस किया, e⁻⁻⁻ क्या होता है, 0, और e++∞ वो इन्फिनिटी के बराबर होता है। हम बाद में इसको एक्सप्लेन भी करेंगे आखिर क्या वजह है e⁻⁻∞ क्यों 0 के इक्वल होता है। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट, y = 6 आपके पास ये है इसका एक आंसर। अच्छा, अब x टेंड्स टू -∞ पुट कर लें, y 2e⁻⁻∞+6, क्योंकि देखें क्वेश्चन में माइनस है, तो यहाँ पर देखें बेटा 2e⁻∞, पॉजिटिव इन्फिनिटी +6, और पॉजिटिव इन्फिनिटी को हमने क्या कहा था,
वो ई पर इन्फिनिटी इन्फिनिटी के बराबर है, इन्फिनिटी को 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी इन्फिनिटी, उसको 6 के साथ ऐड कर लें तब भी इन्फिनिटी, एक्स माइनस इन्फिनिटी और वाई भी इन्फिनिटी। अब हम डियर स्टूडेंट इसके ग्राफ की तरफ आएंगे। पहले तो इस क्वेश्चन के सारे हमें रिजल्ट्स का पता होना चाहिए। ये हमारे पास ये ओके डियर स्टूडेंट, मैं इसको जूम कर देता हूँ। ओके सबसे पहली तो बात है कि हमारे पास एक्स जीरो वाई इन्फिनिटी था, अब वाई एट था, तो वाई एट हम कहते हैं यहाँ पे आपके है एट। ओके एक्स जीरो है वाई एट है। और सेकंड डियर स्टूडेंट हमें पता था कि एक्स इन्फिनिटी है तो वाई क्या है सिक्स है, तो इट्स मीन सिक्स, हम कहते हैं ये सिक्स है। और ये लाइन इसमें से कभी पास नहीं होगी ये, क्योंकि एसिम्प्टोटिक लाइन है, ये हमारे पास एसिम्प्टोटिक लाइन है। ठीक है अब हमने ये डिसाइड करना है हमारा ग्राफ यूं ड्रा होगा कि यूं करके ड्रा होगा। तो इसको डियर स्टूडेंट समझने के लिए आपके को ये पता होना चाहिए कि देखें एक्स माइनस इन्फिनिटी वाई माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी है और वाई क्या है पॉजिटिव इन्फिनिटी है। तो हमारे पास सूटेबल इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस रेंज से स्टार्ट होगा, यूं हो जाएगा और सिक्स के साथ क्रॉस नहीं होगा, इसके साथ चलता रहेगा, इसके साथ चलता रहेगा डियर स्टूडेंट्स। ओके होपफुली डियर स्टूडेंट आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगेन डियर स्टूडेंट मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स हमने ये ग्राफ को या तो ऐसे करके लेना था या ऐसे करके लेना था। हमने ये वाला चूज़ क्यों किया सेकंड वाला, उसकी मेन रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर x नेगेटिव इन्फिनिटी है और y भी इन्फिनिटी है। तो x नेगेटिव x हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और y क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी से ये इस रेंज की तरफ सिक्स की तरफ गया है। ओके डियर स्टूडेंट आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं इसके एक और पार्ट की तरफ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और इनके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। हमारे पास एक और अनदर पार्ट है, हम इसको सी का नेम दे देते हैं। अब सी पार्ट में आपके पास क्या है वाई फोर ई पावर टू एक्स प्लस वन। ओके डिविजन हम इसको कैसे करेंगे, x इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे। सबसे पहले आपके पास हम क्या करेंगे, x इक्वल टू ज़ीरो, वाई फोर ई पावर टू इंटू ज़ीरो प्लस वन, वाई फोर ई पावर ये वन प्लस वन इक्वल टू फाइव। ओके नाउ अब हम इसको कैसे करेंगे, ये तो हमारे पास इंटरसेप्ट्स आ गए। अब हम करेंगे y की वैल्यू को ज़ीरो पुट करेंगे तो क्या आएगा फोर ई पावर टू एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ से अगर हम वैल्यू लें फोर ई पावर टू एक्स इक्वल टू माइनस वन, ई पावर टू एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई फोर। तो हमें पता है कि नेगेटिव इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से हम अब पुट करेंगे x टेंस टू इन्फिनिटी, x टेंस टू इन्फिनिटी है तो y फोर ई पावर टू इन्फिनिटी प्लस वन। और हमें पता है कि फोर ई पावर इन्फिनिटी का आंसर इन्फिनिटी ही होता है, इन्फिनिटी प्लस वन। और ये आंसर क्या हो गया है, इन्फिनिटी के साथ कोई भी चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो वो इन्फिनिटी आंसर आती है। तो इसका मतलब है x टेंस टू इन्फिनिटी और y टेंस टू इन्फिनिटी। फर्दर हम करेंगे x माइनस इन्फिनिटी को y इक्वल टू फोर ई पावर माइनस टू इन्फिनिटी प्लस वन, फोर ई पावर माइनस टू इन्फिनिटी। तो हमारे पास इसका आंसर आता है ज़ीरो प्लस वन और ये क्या आ रहा है हमारे पास वन। एक्स नेगेटिव इन्फिनिटी, वाई का आंसर क्या आ रहा है वन। हम इसको लिख भी लेते हैं एक्स टेंस टू नेगेटिव इन्फिनिटी देन वाई टेंस टू वन। ओके डियर स्टूडेंट अब हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। पहले तो इस सारे की आप देख लें हमारे पास रिजल्ट क्या क्या आए हैं, एक्स ज़ीरो और वाई फाइव और एक्स ज़ीरो और इसका आंसर पॉसिबल नहीं है, एक्स इन्फिनिटी और वाई इन्फिनिटी, एक्स माइनस इन्फिनिटी वाई इक्वल टू वन। ओके एसिम्प्टोट हमारे पास वाई इक्वल टू वन के करीब जाएंगे। देखें डियर स्टूडेंट्स हमने इसका ग्राफ अब स्केच करेंगे। स्केच करने के लिए सबसे पहले तो देखें डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये लाइन कहाँ पे ड्रा करेंगे। सबसे पहले तो हमने ये लाइन ड्रा करनी है एसिम्प्टोटिक लाइन। एसिम्प्टोटिक लाइन हमारे पास ये बन रही है वन के पास, x इक्वल टू वन के पास, y इक्वल टू वन। तो यहाँ पे आपके पास ये बन गई है वन।
ओके, 1 पे ये बन गई, हम इसके ऊपर लिख भी लेते हैं 1। अच्छा, दूसरी देखें इंटरसेप्ट कहाँ पे बन रहे हैं, हमारे पास x0 है तो y5 है, x0 है तो y5 है, हम ये कहते हैं यहाँ पर y है। अब ये डिसाइड करना है ग्राफ यूं करके बनेगा या यूं करके बनेगा। देखें सिंपल सी बात है, x इन्फिनिटी और y भी पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो ये डेफिनेटली डियर स्टूडेंट यहाँ से ड्रा हो रहा है, यहाँ से होता हुआ। मैं कलर चेंज कर देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, ग्रीन कलर, ये यूं करके ये इसके साथ टच नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन आ गया है और हमने ग्राफ को स्केच भी कर दिया है। तो ऐसे हम उसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन ये है y इक्वल टू नेचुरल लॉग 2x+4। तो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करने से पहले x इक्वल टू 0 पुट करेंगे सबसे पहले, और x इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई log ऑफ 2 इंटू 0+4। इसको मज़ीद सॉल्व किया तो ये क्या हो गया, नेचुरल लॉग ऑफ 4, और इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 1.386। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ अब की बार हम करेंगे y इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारे पास क्या हो गया, नेचुरल लॉग 2x+4। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमने कुछ लॉगरिथमिक लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई थी। वो ये है कि आपके पास ये जो लॉग है, ये इसको रिमूव करने के लिए दोनों साइडों का हम e लेंगे, e⁻0, e⁻ नेचुरल लॉग ऑफ 2x+4 ये आ गई, और e⁻0 हमारे पास 1, और इसको हम लिख सकते हैं 2x+4। हमने जस्ट कॉमनली एक्सपोनेंशियल और लॉग की दोनों की प्रॉपर्टीज अप्लाई की हैं। ये +4 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, -4, 2x-3 2x, और ये हो जाएगा -3/2 इंटू एक्स। तो ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई, मीन्स हमारे पास -1.5 और 0 है y। तो ये दूसरा पॉइंट आ गया है, और पहला पॉइंट आप हमारे पास आया है x0 और y की वैल्यू 1.386। होपफुली डियर स्टूडेंट आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं y की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब इन का नेचुरल लॉग होगा या एक्सपोनेंशियल होगा तो उनके ग्राफ होंगे एसिम्प्टोटिक ही होंगे। तो एसिम्प्टोटिक फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले हमने क्या कर दिया, y टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट कर लें, इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ 2x+4, और यहाँ से e पर इन्फिनिटी लॉग ऑफ, इसको रिमूव करेंगे लॉग को तो इन्फिनिटी आ जाएगा 2x+4। और हमें इस चीज़ के बारे में पता है कि e पर इन्फिनिटी किसके इक्वल है, इन्फिनिटी के इक्वल है, इन्फिनिटी -4। इन्फिनिटी में -4 ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आएगा। इसी तरीके से इन्फिनिटी से 2 को डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी ही आएगा। तो इसका मेन ये हो गया कि x भी इन्फिनिटी है और y भी आपके पास इन्फिनिटी है। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, y टेंड्स टू -इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वो क्या होगा, -इन्फिनिटी नेचुरल लॉग 2x+4। लॉग को रिमूव करने के लिए एक्सपोनेंशियल की पावर ले ली 2x+4, और हमें पता है कि e पर -इन्फिनिटी किसके इक्वल है, 0 के। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको प्रूव करना सीखेंगे कि ये एक्चुअली आती कैसे है, e पर -इन्फिनिटी 0 क्यों आता है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, ये 0 अप्लाई हो गया, 2x+4 -4 2x, और x की वैल्यू होगी हमारे पास -2। तो होपफुली डियर स्टूडेंट ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हमारे पास जो नेक्स्ट जो कर्व बनी है वो -2 और -इन्फिनिटी है। अब मैं इनको हाईलाइट कर लेता हूँ, जो हमारे पास मल्टीपल पॉइंट्स निकले हैं। एक ये हमारे पास हाईलाइटेड पॉइंट है, एक ये हाईलाइटेड है, एक ये हाईलाइटेड पॉइंट है, और एक ये हाईलाइटेड पॉइंट है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो है, जो इम्पोर्टेंट काम है, जो वो है ग्राफ, जिसके लिए हम सारी मेहनत कर रहे हैं। तो ये मैं इसका ग्राफ ड्रा कर देता हूँ, और मेरी कोई ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है डियर स्टूडेंट्स, तो थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या है, फर्स्ट पॉइंट है आपके पास 0 और -1.38। तो x 0 है और y क्या है, -1.38।
एक्स 0 और वाई हमारे पास 1.38, हम कहते हैं ये 1.386 ये वैल्यू है। इसी तरीके से सेकंड जो पॉइंट है हमारे पास -1.5 और 0 है, -1.5 एक्स -1.50 वाई 0, तो ये हमारे पास -1.58। अच्छा, अब हम देखेंगे कि एसिम्टोट कहाँ पे बन रहा है। देखें ये दो इक्वेशन है, यहाँ पर एसिम्टोट बन रहा है, y माइनस इन्फिनिटी है और x की वैल्यू क्या -2 है, तो ये हम कहते हैं -2 हमारा यहाँ पे लाई कर रहा है, और यहाँ पर हम एसिम्टोट ग्राफ टाइप की डॉटेड लाइन ड्रा कर देते हैं। ओके डियर स्टूडेंट। अच्छा, अब इसके बाद हमने ये डिसाइड करना है कि हमारा ग्राफ यूं बनेगा ये यूं आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो देखें एक्स भी इन्फिनिटी वाई भी इन्फिनिटी, तो इट्स मीन ये यहाँ से आपके राइट साइड से स्टार्ट होगा और यूं जाएगा, और ये जाते जाते यहाँ से इसको टच नहीं करेगा, एसिम्टोट की जो वैल्यू है इसको टच नहीं करेगा, ये वैल्यू इसी तरह लेके चलेगा। तो होपफुली डियर स्टूडेंट आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि ग्राफ को कैसे ड्रा करना है, और जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट लेनी है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि बी पार्ट है हमारे पास, y इक्वल टू नेचुरल लॉग 8 माइनस 2x। ओके डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने x इक्वल टू 0 पुट कर लिया, y की वैल्यू log ऑफ 8 माइनस 2 इंटू 0, और मज़ीद इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 8 माइनस 2 इंटू 0 वो 0 ही रह जाएगा, तो हमारे पास log ऑफ 8 आ गया। ओके डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन इज हमारे पास क्या आ गया है, y को अगर हम 0 पुट कर लें तो हमारे पास क्या आएगा, 0 log ऑफ 8 माइनस 2x, और अगर हम इसको लॉग को रिमूव करें तो एक्सपोनेंशियल पावर आ जाएगी, ई पावर नेचुरल लॉग ऑफ 8 माइनस 2x, और मज़ीद हम इसको करें ई पावर ये 0, और ये आ जाएगा 8 माइनस 2x, 1 माइनस 8 इक्वल टू -2x, और ये आ जाएगा -7 इक्वल टू -2x, तो ये आ जाएगा 7/2 माइनस माइनस कैंसिल आउट होने के बाद। ठीक है, तो हमारे पास जो दूसरा पॉइंट एक तो हमारे पास आ गया है वो है 0 और log ऑफ 8, दूसरा पॉइंट है हमारे पास 7/2 इंटू 0। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, y टेंस टू इन्फिनिटी को पुट कर लेते हैं, तो y टेंस टू इन्फिनिटी हमारे पास क्या आ गया है, इन्फिनिटी log ऑफ 8 माइनस 2x, और log दूसरी साइड पे जाके एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगा, e पावर इन्फिनिटी 8 माइनस 2x। तो डियर स्टूडेंट्स, e पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी के इक्वल होता है, और 8 माइनस 2x, अब इसमें -8 को दूसरी साइड पे लेके जाएं, 8 इन्फिनिटी -8 माइनस 2x। तो डियर स्टूडेंट हमें पता है इन्फिनिटी के साथ कोई चीज़ पॉजिटिव हो नेगेटिव हो तो वो क्या रहेगी, इन्फिनिटी ही रहेगी, -2x। अब -2x को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर लें तो ये -2x हो जाएगा। अब डेफिनेटली इन्फिनिटी को -2 से डिवाइड करें तो एक नेगेटिव नंबर ही आएगा ना, जैसे अगर हम करें 8 को -2 से डिवाइड करें तो -4 आएगा, तो इसी तरह इन्फिनिटी को -2 से डिवाइड किया तो हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी आ गई। तो बेटा ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। ओके, नाउ हम डिस्कस करेंगे y टेंस टू माइनस इन्फिनिटी को कैसे डील करेंगे, ई पावर माइनस इन्फिनिटी। मैं थोड़ा इसको एक साइड पे लिख लूँ ताकि हमें क्लियर हो, y टेंस टू माइनस इन्फिनिटी हम इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, नेचुरल लॉग ऑफ 8 माइनस 2 इंटू एक्स, तो ई पावर माइनस इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 2x, तो हमें पता है ई पावर माइनस इन्फिनिटी 0, 8 माइनस 2x, और 8 उधर जाके क्या हो जाएगा -8 माइनस 2x, और x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -8 माइनस 2, ये +4 हो जाएगी। तो हमारे पास थर्ड आंसर भी ये आ गया है। तो मैं सबसे पहले इन सारे आंसर्स को हाईलाइट कर लेता हूँ, ये यहाँ पे लिख लेता हूँ, इन्फिनिटी और 4,
माइनस इन्फिनिटी और 4। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो मैं इनको हाईलाइट। ओके डियर स्टूडेंट, हमारे पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं, हम इनको इस फॉर्म में लिखते हैं, ग्राफिकल फॉर्म में। तो सबसे पहली वैल्यू है हमारे पास x0 और y 1.8, हम ये ड्रा कर लेते हैं, ये 0 और log ऑफ 8 हो गया है। इसके बाद सेकंड वैल्यू हमारे पास है 3.5 और 2, क्योंकि 7/2 और 0 3.5, तो इट्स मीन हमारे पास ये 1, ये 2, ये 3 और इसका मतलब है ये 3.5, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। इसके बाद हम करेंगे कि एसिम्टोट को देखेंगे। एसिम्टोट देखें, ये माइनस इन्फिनिटी और 4 पे है, तो हम कहते हैं ये 4 है हमारे पास। इसका एसिम्टोट हम ग्रीन कलर से यूज़ करके हम ड्रा कर देते हैं। और देन हम क्या करेंगे, आप देखें डियर स्टूडेंट्स, माइनस इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी, अभी डेफिनेटली ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, एक्स नेगेटिव है और वाई क्या है, एक्स नेगेटिव है और वाई क्या हमारे पास पॉजिटिव है, तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट से ये लाइन ड्रा होती हुई आ रही है। और ये आपके पास इस एसिम्टोट के साथ जाके कहीं पर मैच टच नहीं करेगी, और ये हमारे पास इसका आंसर है एसिम्प्टोट इक्वेशन से। आप इसको वेरीफाई भी कैसे देखें, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ की तरफ जा रही है, बाय नेगेटिव इन्फिनिटी और x इक्वल टू 4। तो देखें ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट के साथ ये वैल्यू हमारी मैच हो रही है। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ताकि मज़ीद इसमें क्लैरिटी हो। और एसिम्प्टोट एक डिफ़िकल्ट टॉपिक है, इसको हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस में लेकर आएंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अब आते हैं हमारे पास इसका एक और पार्ट, सी पार्ट ले लेते हैं। तो y इक्वल टू -3 log ऑफ 6x माइनस 9, x इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। तो y की वैल्यू मैं थोड़ा सा क्विकली इसको रिफाइंड कर लेते हैं, log ऑफ -9। अब देखें log ऑफ -9, तो इट्स मीन अगर आप कैलकुलेटर में वैल्यू दें तो या तो वो इमेजिनरी नंबर आता है या नॉट सोल्यूशन पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, तो इसका सोल्यूशन हम कहेंगे पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरीके से y टेंस टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्या बनेगा, 0 -3 log ऑफ 6x माइनस 9। मज़ीद अगर हम इसको जूम करें तो ये हमारे पास क्या आ गया है, इसको रिमूव करने के लिए -3 को डिवाइड करो 0 से, -3 log ऑफ 6x माइनस 9 और ये आ जाएगा 0 log ऑफ 6x माइनस 9, इसको रिमूव करेंगे e पावर 0 से और ये आ जाएगा 6x माइनस 9 और ये आ जाएगा आपके पास 1 6x माइनस 9 और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -9, उधर जाके क्या हो जाएगी 1 + 9 6x और x की वैल्यू आ जाएगी 10/6, जो कि हमारे पास 5/3 आंसर आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम करेंगे इसमें y टेंस टू इन्फिनिटी को पुट करेंगे। इन्फिनिटी को पुट करते हैं, इन्फिनिटी -3 नेचुरल लॉग ऑफ 6x माइनस 9 e पावर -3 को डिवाइड करें तो ये आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी। देखें इन्फिनिटी को -3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, माइनस इन्फिनिटी log ऑफ 6x माइनस 9। डियर स्टूडेंट ठीक है, ये अगेन कंसेप्ट देख लें, इन्फिनिटी है -3 है, क्योंकि आप देखें इन्फिनिटी कोई भी ग्रेटर नंबर है, लेट्स सपोज 9 है, 6 है, 10 है, इनको 3 से -3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो इस कंसेप्ट को आप इस तरीके से भी ध्यान में रख सकते हैं। अब हम एक्सपोनेंशियल दोनों साइडों पे अप्लाई करेंगे, माइनस इन्फिनिटी ई पावर log ऑफ 6x माइनस 9 और मज़ीद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें ई पावर माइनस इन्फिनिटी वो क्या हो जाएगी 0, हाँ, और 6x माइनस 9 बन गया ये आपके पास। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू जो आएगी 9 6x और x की वैल्यू आ गई है 3/2। तो एक पॉइंट आपके पास क्या हो गया 3/2 और इन्फिनिटी। अगर हम y को माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या होगा उसको हम देख लेते हैं। अगर हम y को माइनस इन्फिनिटी पुट कर लें
तो देखें तो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी -3 नेचुरल लॉग ऑफ 6x-9। सबसे पहले माइनस माइनस को रिमूव कर देता है। अल्फ़ा को अगर इन्फिनिटी को 3 से डिवाइड करें तो इन्फिनिटी ही आएगी, नेचुरल लॉग ऑफ 6x-9। और मज़ीद अगर हमने क्या कर लिया, इन ई पर इन्फिनिटी ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 6x-9। और ई पर इन्फिनिटी हमें पता है इन्फिनिटी के इक्वल है, और इन्फिनिटी में 9 को ऐड कर लें वो भी इन्फिनिटी, और 6 को डिवाइड कर लें तो इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास इसका टोटल कंसेप्ट है। तो ये हमारे पास x इन्फिनिटी होगा और y माइनस इन्फिनिटी होगा। तो अब हम इसके ग्राफ की तरफ आते हैं। तो ग्राफ को हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम इसके ग्राफ को कैसे ड्रा कर सकते हैं। ओके, हमारे पास जो इसकी अगर हम ऊपर देखें तो हमारे पास जो इसकी वैल्यूज़ आ रही हैं, पहली वैल्यूज़ तो नॉट पॉसिबल है, सेकंड वैल्यू हैं 0 और 5/3। तो हम सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो ये हमारे पास 3/2 यहाँ पे अब कहते हैं ये अप्लाई हो रहा है। ओके, और हमारे पास एसिम्प्टोट इक्वेशंस जो बन रही हैं वो बन रही है हमारे पास 3/2 की। एसिम्प्टोट हमारे पास 3/2 पे बन रहा है। तो ये हम पहले एसिम्प्टोट ड्रा कर लेते हैं इसमें, ये एसिम्प्टोट। अच्छा, एसिम्प्टोट के बाद सेकंड ये है कि आपके पास फर्स्ट वैल्यू क्या ही है, 5/3। 5/3 को अगर हम चेक करें तो ये हमारे पास ग्रेटर है 3/2 से। तो ये 1.66 कुछ आ रहा है, तो ये ग्रेटर वैल्यू आ रही है। तो ये हम इसको यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं, और ये हमारे पास क्या आ रहा है 5/3। तो अब हम ग्राफ ड्रा करने के लिए डियर स्टूडेंट आप और से इसको समझिएगा। देखें, एसिम्प्टोट एक तो हमारे पास है 3/2 और पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब x पॉजिटिव है और y क्या है, नेगेटिव इन्फिनिटी। तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव, ये तो इट्स मीन फोर्थ क्वाड्रेंट से बात स्टार्ट हो रही है। अगर आप देखें तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट से यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यूँ जा रही है और यूँ यूँ, और ये एसिम्प्टोट के साथ साथ पैरेलल चल रही है। तो डियर स्टूडेंट ये तो था इस सारे का कंसेप्ट, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इसके ग्राफ को आपने अंडरस्टैंड करना है। अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में या आप कमेंट कर सकते हैं। और